Hello friends, I'm back with another video. In last video of class 12th, I have shared about interest on loan and basics concept of partnership firm. Today I am here to tell you about the difference between profit and loss account and profit and loss appropriation account. Apart from this, today we will be discussing in this video about the difference between appropriations out of profit and charge against profit. See, it is very important that we should know the meaning on and difference between appropriation out of profit and charge against profit. Why? Because if we are studying partnership firm and their accounting, then it is very important for us to understand very clearly about what do we mean by charge against profit and what do we mean by appropriations of profit. And another thing is we should be very clear about that to why P&L appropriation account is prepared in partnership firm and why not P&L account. So let's just understand the background first. If we go to the background, we will get to know that being a partnership firm, what are the different accounts which are being prepared by the partnership firm? What are the different accounting treatments for their transactions which is being done by the partnership firm? So let's just understand that first. See, in class 11th, you must have studied about the sole proprietor. Right? When you have studied about the sole proprietor, you have studied that sole proprietors, they generally prepare three types of accounting. We can say three types of accounting treatments are generally done in the books of sole proprietor. You must have studied about the trading account. You must have studied about profit and loss account. You must have studied about balance sheet, which is being prepared by the sole proprietor. So these are the three statements which are being prepared by the sole proprietor while they are preparing their financial statements. So when it comes to the partnership firms, so partnership firms, they are simply preparing three financial statements, but the difference is being a partnership firm, they are preparing three statements. One is they are preparing profit and loss appropriation account. Second one is they are preparing partners capital account. And third one is they are preparing balance sheet. So what do we have to consider here? That how sole proprietors books are different from the partners book. Now, what is P&L appropriation account? What is partners capital account? And what is balance sheet? Balance sheet we already know because we have already prepared it for the sole proprietor in class 11. But we don't know that what is P&L appropriation account. How to understand the concept of P&L appropriation account. So let's see what is the difference between the account which is prepared by sole proprietor, that is profit and loss account, and account which is prepared by the partnership firm, that is P&L appropriation account. So let's take up the difference between these two. If I talk about the difference between P&L account and P&L appropriation account, so for that you have to ensure that certain things आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग. आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म की. अगर मुझे बेटा पार्टनरशिप फर्म पढ़ते टाइम ये नहीं पता कि क्या डिफरेंस है P&L अकाउंट में और क्या डिफरेंस है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो वो वहीं से मेरे कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो वीक हो जाते हैं. क्यों मेरे कॉन्सेप्ट्स वहाँ से वीक हो जाते हैं बेटा? क्योंकि जो P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है यही सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करेंगे हमारे इसमें क्या कहते हैं वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट. ठीक है. सो व्हेन वी प्रिपेयर द अकाउंट्स फॉर द पार्टनरशिप फर्म, सो आई एम टेलिंग यू अगैन एंड अगैन दैट द पार्टनर्स दे फॉर्म द P&L appropriation account and P&L account in their financial statements. अपनी financial statements में बेटा वो P&L account और P&L appropriation account जो है वो बनाते हैं. ठीक है. P&L account और P&L appropriation account में डिफरेंस क्या है यही समझने के लिए आज हम यहाँ आए हैं. तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि P&L account और P&L appropriation account में क्या डिफरेंस है. So let's just understand the difference between these टू अकाउंट्स. ओके. सो अगर मैं बात करूं हमारे P&L अकाउंट की और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की.
अगर आपको अच्छे से ध्यान होगा बेटा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो क्या अकाउंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा एक ऐसा अकाउंट है बेटा जो कि मेरा एक नॉमिनल अकाउंट के रूल पे चलता है, ठीक है। और जो अकाउंट मेरे नॉमिनल अकाउंट के रूल पे चलता है वो अकाउंट मेरा एक ऐसा अकाउंट होता है जिस पे नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई किया जाता है। और अगर मैं यहाँ नॉमिनल अकाउंट के रूल को अप्लाई करने की बात करूँ तो नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या कहते हैं उसको हमें यहाँ पे एक बार फिर से रिकॉल करना पड़ेगा, रिकैप्चुलेट करना पड़ेगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है बेटा कि एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट you must have studied debit all expenses and losses, credit all incomes and gains। तो हमारे नॉमिनल अकाउंट का रूल ये कहता है यहाँ कि मुझे सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करना है, लेकिन मुझे क्रेडिट किसको करना है? आई हैव टू क्रेडिट दी ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मुझे सारी इनकम्स और गेन्स को क्रेडिट करना है। ये सिंपल सा रूल है जो मेरा नॉमिनल अकाउंट का अप्लाई किया जाता है। अब देखो ऐसा होता है बेटा, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे और यहाँ मैं लिख रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। जब मुझे इन दो अकाउंट के बीच में डिफरेंस जानना है तो समझते हैं इन दोनों अकाउंट्स के बीच का डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मैंने कहा कि जब भी मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगी तो मुझे उस अकाउंट के अंदर क्या रूल अप्लाई करना है कि मैं सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करूंगी और मैं सारी इनकम्स को क्रेडिट करूंगी। ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है जो मेरे पीएनएल अकाउंट में अप्लाई होता था, ठीक है। अब देखो सबसे पहला डिफरेंस क्या आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वो सबसे पहला डिफरेंस मेरा ये है बेटा कि कौन सा अकाउंट कब बनाया जाता है और कौन सा अकाउंट कब बनाया जाता है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि सबसे पहले अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले मैं कौन सा अकाउंट बनाती थी। जस्ट रिकैप व्हाट यू हैव डन इन क्लास 11th। हमने क्लास 11th में क्या पढ़ा है बेटा कि सबसे पहले मेरा कौन सा अकाउंट बनाया जाता था? सबसे पहले मेरा अकाउंट बनाया जाता था ट्रेडिंग अकाउंट। तो आप लिखेंगे कि इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनने के बाद मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। और हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए क्या सीखना है कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है मेरा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है, लेकिन मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बन सकता। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपको कुछ भी रटवाऊंगी नहीं, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी। तो आपको यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखो जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता था तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हम पीएनएल अकाउंट बनाते थे। इसके पीछे हमारा क्या लॉजिक था? इसके पीछे हमारा ये लॉजिक था बेटा कि ट्रेडिंग अकाउंट से जो भी मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होगा या मेरा ग्रॉस लॉस होगा वो क्रॉस पोस्ट हो जाएगा मेरा पीएनएल अकाउंट में, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ पे ले लेते थे और जितना भी हमारा क्या कहते हैं नेट प्रॉफिट होता था उसको हम, जितना भी हमारा ग्रॉस लॉस होता था उसको हम क्या कहते हैं डेबिट साइड पे उतार लेते थे, और जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होता था उसको हम कहाँ उतार लेते थे बेटा? क्रेडिट साइड पे उतार लेते थे, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ समझने वाली थी वो ये है कि मेरे जितनी भी क्या कहते हैं ग्रॉस लॉस है वो सब कहाँ पे उतारा जा रहा था बेटा? ग्रॉस लॉस जो है वो उतारा जा रहा था सारा का सारा क्रेडिट साइड डेबिट साइड पे, और मेरी ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कहाँ उतारा जा रहा था? सारा का सारा क्रेडिट साइड पे पीएनएल के, ठीक है। तो अब जो है मेरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पीएनएल और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बीच में ये है कि जो पीएनएल अकाउंट है वो जब ट्रेडिंग अकाउंट बनता था उसके बाद बनेगा। लेकिन अगर अब मैं बात करती हूँ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेरा एक ऐसा अकाउंट है बेटा जो मेरा कब बनाया जाएगा? वो ऐसा अकाउंट है बेटा वो तब बनेगा जब मैं क्या बनाऊंगी? जब मैं बनाऊंगी पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट बनने के बाद इसका मतलब है मेरा कौन सा अकाउंट बनाया जाएगा? पीएनएल अकाउंट बनने के बाद, पीएनएल अकाउंट बनने के बाद मेरा जो अकाउंट बनाया जाएगा उस अकाउंट का नाम होगा
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उस अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहेंगे, ठीक है। और जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ना बेटा, उसका फॉर्मेट भी हम करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है। लेकिन अभी के लिए हमें ना इन दोनों के बीच में ना डिफरेंस समझना है कि व्हाट is the difference between P&L account and P&L appropriation account. So let's just understand the difference. ये इसकी डेबिट साइड है बेटा, ये इसकी क्रेडिट साइड है, ये मेरा एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। मैंने कहा कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और P&L अकाउंट में मेरा पहला डिफरेंस ये है कि सबसे पहले मेरा P&L अकाउंट बनेगा और उसके बाद मेरा क्या बनेगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। चलिए, ये बात भी मैंने आपकी मान ली। अब आप एक बात देखिए कि जब मेरा P&L अकाउंट बनाया जाता था तो वहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस हम कहाँ से ट्रांसफ़र करते थे, वहाँ पे जितना भी मेरा ग्रॉस प्रॉफिट या मेरा जितना भी ग्रॉस लॉस होता था वो हम ट्रेडिंग अकाउंट से लेते थे। बट मेरा P&L अकाउंट में हमेशा बैलेंस किस चीज़ का बचता था, व्हाट इज़ द बैलेंसिंग फिगर इन P&L अकाउंट। देखो, P&L अकाउंट में मेरी बैलेंसिंग, यहाँ से ग्रॉस लॉस आया, यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट आया, ठीक है, क्रॉस पोस्ट होके। बट मैंने कहा कि जब हम P&L अकाउंट बनाते हैं, P&L क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम P&L अकाउंट से ट्रांसफ़र करेंगे। आप खुद सोच के देखिए, जब मैं P&L अकाउंट बनाती हूँ तो मेरा डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर बचता है नेट प्रॉफिट, दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर ऑफ P&L अकाउंट, या फिर बचता है नेट लॉस इस तरफ क्रेडिट साइड की तरफ। तो मेरा जितना भी नेट लॉस बचता है क्रेडिट साइड की तरफ वो मेरा बैलेंसिंग फिगर होता है, दैट इज माय बैलेंसिंग फिगर। अब जब भी मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगी, इट विल बी ऑलवेज आफ्टर द P&L अकाउंट। सो दैट मीन्स वट एवर इज द नेट लॉस which is the balancing figure of P&L account, it will be transferred to the P&L appropriation account, cross posting, and whatever is the net profit, it will be transferred from the P&L account to P&L appropriation account on the credit side, again cross posting. So this is the first difference between P&L account and P&L appropriation account, and the first difference is that P&L account is prepared after trading account and P&L appropriation account is prepared after the P&L अकाउंट। सो सिंपल एज दैट। सबसे पहले मैंने ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकाला, उस ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की बैलेंसिंग फिगर को मैंने P&L अकाउंट में क्रॉस पोस्ट किया। क्रॉस पोस्ट करने के बाद जो मेरा बैलेंसिंग फिगर P&L अकाउंट का बचा, ईदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, वो मैंने कहाँ ट्रांसफ़र किया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। नेट लॉस है तो वो डेबिट साइड पे ट्रांसफ़र किया, और अगर मेरा नेट प्रॉफिट है तो वो मैंने क्रेडिट साइड पे ट्रांसफ़र किया। चलिए, ये तो था मेरा पहला डिफरेंस इन दोनों के बीच में। अब अगर मैं बात करती हूँ सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन P&L अकाउंट एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कमिंग बैक टू माय मेन टॉपिक। तो अगर मैं इसके सेकंड डिफरेंस की बात करती हूँ तो अब इसका सेकंड डिफरेंस कहता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है भाई। तो मुझे ऑब्जेक्टिव बताओ सबसे पहले कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है P&L अकाउंट बनाने का। ऑब्जेक्टिव इज टू गेट नेट प्रॉफिट नेट लॉस। मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है P&L अकाउंट बनाने का, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी बताया कि यहाँ से मुझे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलेगा। तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बनाना मेरा निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव है जी, कि मेरे को P&L अकाउंट बनाना है, ठीक है। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के पीछे मेरा क्या मोटिव होगा, इट इज़ प्रिपेयर्ड टू शो। इसको हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, इट इज़ प्रिपेयर्ड टू शो एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट। इसका अब क्या मतलब हुआ मैम, आपने तो हमें कंफ्यूज कर दिया, हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, हम थोड़ा सा फंबल हो गए। आपने कहा P&L अकाउंट बनाने के पीछे मेरा लॉजिक है कि मेरे को नेट प्रॉफिट और नेट लॉस चाहिए, बट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के पीछे मेरा क्या लॉजिक है कि आई हैव टू शो द एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। Again, it's a new term. What do we mean by that? What do we mean by appropriation out of profits? So coming back to the new screen and let's understand the difference between these three terms जो मैंने अभी term use की है, appropriation out of profit. See, बेटा ये था एक sole proprietor, ठीक है। इस sole proprietor ने अपनी बुक्स में जितना भी प्रॉफिट कमाया या इस बंदे ने जितना भी लॉस कमाया, राम है ये मिस्टर आर, इन्होंने जितना प्रॉफिट कमाया जितना लॉस कमाया सब इसकी जेब में जाएगा, ठीक है। बट अभी हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनरशिप में मेरे पास भाई दो पार्टनर हैं, ए है मिस्टर और मिस्टर बी हैं,
ठीक है, जितना भी मेरा प्रॉफिट होगा वो इट विल बी ईदर इट इज अ लॉस, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट बोथ ऑफ देम इन एन अग्रीड रेशो. One thing. Second thing is, I told you in yesterday's class that being partners, A and B are entitled to interest on capital. A and B are entitled to salary. A and B are entitled to any sort of remuneration. इन्हें कोई remuneration, commission, ये सब पार्टनर को मिलती है. तो बेटा दे आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दे आर इंटाइटल्ड टू सैलरी, दे आर इंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन, दे आर इंटाइटल्ड टू कमीशन. तो ये सब इन्हें कहाँ से मिलेगा? क्या हम इन चीज़ों को रिकॉर्ड करते थे P&L अकाउंट में जो पार्टनर्स को देना है? नहीं. हम जो भी चीज़ें पार्टनर्स को देते हैं इट इज़ ऑलवेज गिवन आउट ऑफ प्रॉफिट. तो दे आर कॉल्ड एज एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट. हम जो भी चीज़ें पार्टनर्स को दे रहे हैं ये सारी चीज़ें, ये सब क्या है बेटा? दे ऑल आर कॉल्ड एज एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट. इसका मतलब है कि फर्म के पास जो नेट प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट में से वो अपने पार्टनर्स को सैलरी देगी, वो उसमें से अपने पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देगी, वो उसमें से अपने पार्टनर्स को कमीशन देगी, उसमें से अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी. सो इसलिए हमने क्या कहा कि पार्टनरशिप फर्म में हम क्यों बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट? क्योंकि पार्टनर्स को ये एप्रोप्रिएशंस देनी पड़ेंगी हमें आउट ऑफ प्रॉफिट. हम प्रॉफिट निकालने के लिए इन्हें नहीं यूज़ कर सकते हैं. ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें प्रॉफिट कमाने के बाद अपने पार्टनर्स को देनी है. ठीक है ना? तो P&L अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं? P&L अकाउंट सिंपल एंड सॉर्टेड. हम P&L अकाउंट इसलिए बना रहे हैं बेटा ताकि हम वहाँ से नेट प्रॉफिट निकाल सके. ये रहा मेरा P&L अकाउंट. मैंने P&L अकाउंट बनाया. डेबिट, क्रेडिट, आई हैव डेबिटेड ऑल द एक्सपेंसेस, आई हैव क्रेडिटेड ऑल द इनकम्स. मैंने सारे एक्सपेंसेस को डेबिट किया. यहाँ पे अगर ग्रॉस प्रॉफिट था तो ग्रॉस प्रॉफिट लिखा, ग्रॉस लॉस था तो मैंने ग्रॉस लॉस लिखा. इट्स और ठीक है, ईदर ऑफ टू कैन बी देयर. ठीक है, एक्सपेंसेस लिए, इनकम्स लिखी, क्लोज किया अकाउंट. ठीक है, क्लोज करने के बाद मेरा बैलेंसिंग फिगर बचेगा या तो नेट प्रॉफिट विच विल बी माई बैलेंसिंग फिगर, or my balancing figure can be net loss. ठीक है, which is again a balancing figure. So either of two will be used for making the payments to the partners. तो इसीलिए P&L में से अगर मेरा नेट प्रॉफिट आया है तो उस नेट प्रॉफिट को मैं यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड करूँगी और इस प्रॉफिट में से मेरी जितनी भी, ये क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है तो मेरी जितनी भी एप्रोप्रिएशंस हैं वो मैं पार्टनर्स को दे दूंगी. जैसे मुझे पार्टनर्स को IOC देना है, मुझे पार्टनर्स को सैलरी देना है, मुझे पार्टनर्स को कमीशन देना है, जो भी देना है वो मैं पार्टनर्स को दे दूंगी. तो P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और दोनों ही अकाउंट्स के ऊपर नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स. अभी हमने क्या किया? हमने अपने नेट प्रॉफिट को क्रेडिट किया और उस नेट प्रॉफिट में से हमने सारी पेमेंट्स कर दी, सारी एप्रोप्रिएशंस दे दी. क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वी गिव ऑल द एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट. तो इसलिए मैंने अपने प्रॉफिट में से ये सारी एप्रोप्रिएशंस दे दी और जब मैंने दी, कोई भी चीज़ जब मैं पे करती हूँ तो मेरे अकाउंट से डेबिट होती है, इसीलिए मैंने सारी एप्रोप्रिएशंस को डेबिट किया है. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स. सो ये था मेरा मेजर डिफरेंस P&L अकाउंट में और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. ठीक है, और अब देखिए मेरा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी इसी से ही कनेक्टेड है. जिसको ये समझ में आ गया वो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को बहुत ईजिली समझ सकता है. मेरा थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है वो यही है कि यहाँ पे ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड. ठीक है, एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड. सारी इनकम्स को हम क्रेडिट कर रहे हैं, सारे एक्सपेंसेस को हम डेबिट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू असर्टेन. हमारा मोटिव क्या है कि हम इनकी हेल्प से क्या निकाल सके? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल सके. ठीक है, और मेरा जो थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पे बनता है वो ये है कि ऑल एप्रोप्रिएशंस, जितनी भी मेरी एप्रोप्रिएशंस हैं, दे ऑल आर डेबिटेड. क्यों हम डेबिट कर रहे हैं सारी एप्रोप्रिएशंस को? बिकॉज दे आर पेमेंट्स एंड एनी पेमेंट विच इज़ मेड आउट ऑफ द प्रॉफिट विल बी डेबिटेड. जितने भी मेरे खर्चे हैं वो सब डेबिट ही होते हैं ना बेटा, इसलिए सारी एप्रोप्रिएशंस को हम यहाँ पे डेबिट करते हैं. ठीक है, और मेरा फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि P&L अकाउंट बनाने के लिए वी डोंट नीड एनी गाइड बाय पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट.
There is no need for any guide, not guided by पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और डीड भी लिख सकते हो आप, ठीक है, कोई इसको गाइड नहीं करता. बट जब मुझे एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो आई नीड गाइडेंस बाय पार्टनरशिप अग्रीमेंट. एज पर द पार्टनरशिप अग्रीमेंट ही हम सैलरी देंगे, कमीशन देंगे. तो ये बात ऑब्वियस सी बात है कि पार्टनरशिप अग्रीमेंट गाइड करेगा, उसी हिसाब से पीएनएल अकाउंट बनेगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा. और पीएनएल अकाउंट जो है इट डजंट रिक्वायर एनी गाइडेंस फ्रॉम द, it doesn't require any guidance from any partnership agreement. ओके, सो ये तो था, यही सिर्फ एक मेजर डिफरेंस है बेटा पीएनएल अकाउंट में और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बीच में, कि पीएनएल अकाउंट पहले बनेगा और पीएनएल एप्रोप्रिएशन बाद में बनेगा. पीएनएल से हम नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालेंगे और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हम सारी एप्रोप्रिएशन शो करेंगे जो हम प्रॉफिट में से दे रहे हैं. जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज हैं उन्हें हम डेबिट करेंगे, जितनी भी इनकम्स हैं हम उसे क्रेडिट करेंगे, जितने भी मेरे एप्रोप्रिएशंस हैं उन सबको हम डेबिट कर देंगे. और इसमें कोई पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है गाइड नहीं करेगा, बट इट विल बी गाइडेड बाय पार्टनरशिप अग्रीमेंट. जिसे नहीं समझ आया एक बार फिर से यहाँ पे समझ लीजिए बहुत ध्यान से, ये मेजर डिफरेंस है. जिसे ये डिफरेंस समझ में आ गया उसका कभी भी क्वेश्चन पार्टनरशिप अकाउंट में गलत नहीं होगा. पीएनएल अकाउंट जो है बेटा उसमें हम एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, इनकम्स को क्रेडिट करके नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते हैं. उस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को हम यहाँ क्रॉस पोस्ट करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि उसी नेट प्रॉफिट में से सारी एप्रोप्रिएशंस पे करनी पड़ती हैं. किसको पे करनी पड़ती हैं? फर्म को पे करनी पड़ती हैं, टू द पार्टनर्स. और वो सारी एप्रोप्रिएशंस जो है वो पार्टनर्स को पे कर दी जाती हैं. ठीक है, ये तो था बेटा पीएनएल अकाउंट और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बीच में डिफरेंस. आइए अब हम समझते हैं हमारा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इस चैप्टर का, जिस डिफरेंस का नाम है बेटा बहुत ही मतलब वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस इट इज़ डिफरेंस बिटवीन, इट इज़ कॉल्ड एज अ डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. ये आपको बेटा बहुत अच्छे से समझना है. आप इसको कह सकते हैं वी इम्पॉर्टेंट. वी इम्पॉर्टेंट मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट. क्यों मैं इसे वी इम्पॉर्टेंट कह रही हूँ? क्योंकि ये एक ऐसा डिफरेंस है जो कि आपको ना बिल्कुल आपके टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि ये आपको ना बहुत हेल्प करेगा 6 मार्कर क्वेश्चंस में, 4 मार्कर क्वेश्चंस में, 3 मार्कर क्वेश्चंस में. क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी कहा जा सकता है कि दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. सो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है. तो हम बिल्कुल इसको इन डेप्थ समझेंगे कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब होता है. तो आपने मेरे साथ बिल्कुल संयोग करते हुए समझना है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब है. ठीक है बेटा, देखो मैंने कहा सबसे पहले कि नेचर समझते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का नेचर क्या है, और ये समझते हैं एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का नेचर क्या है. ठीक है, देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि इट इज़ एन एक्सपेंस. ये एक एक्सपेंस है, ठीक है, एंड इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इनकम्स. जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं ना, ये खर्चे हैं जिन्हें हम डिडक्ट कर रहे हैं रेवेन्यू में से या इनकम में से, ताकि हम नेट प्रॉफिट फाइंड आउट कर सके. टू फाइंड नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पाने के लिए हम एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं. इनकम की बजाय भी ना आप एक टर्म यहाँ यूज़ कर सकते हो विच इज़ अ बेटर टर्म. यू कैन राइट रेवेन्यू टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. ठीक है, नाउ एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? इट मीन्स distribution of net profit among partners. इसका क्या मतलब? मैंने अभी आपको बताया बेटा कि appropriations out of profit का मतलब है कि net profit, ये देखो जिसे अभी भी confusion है वो यहाँ समझ सकता है कि appropriation out of profits का मतलब है कि net profit आ जाने के बाद जो भी चीज़ें हम पार्टनर्स को दे रहे हैं वो सब मेरी appropriations out of profit है. लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब हो? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब वो चीज़ें जो पीएनएल में डेबिट होती हैं. ध्यान से समझना, मैंने कहा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है ये मेरा अगर एक पीएनएल अकाउंट है, इफ दिस इज माय पीएनएल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब वो एक्सपेंसेस जिसे मैं पीएनएल में डेबिट साइड पे लिखती हूँ और जिसको मैं इनकम्स में से माइनस करती हूँ, तो मेरा नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आता है. ध्यान से सुन लो मैंने क्या कहा, मैं दोबारा से नीट एंड क्लीन लिख देती हूँ. मैंने कहा
कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब अगर ये मेरा P&L अकाउंट है तो दे आर एक्सपेंसेस, ये वो एक्सपेंसेस हैं जैसे रेंट, जैसे मैं लिख देती हूँ एक आधा एक्सपेंस ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जैसे रेंट हो गया बेटा, ठीक है, जैसे कि मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, जैसे कि मेरे और भी हो सकते हैं, डेप्रिसिएशन हो गया बेटा, ठीक है। ये सारे ऐसे खर्चे जिनको मैं लिखूंगी और यहाँ मेरे जो क्या कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट है, उस ग्रॉस प्रॉफिट में से मतलब मेरी इनकम में से जब मैं इनको माइनस करूँगी तो यहाँ पे मेरा नेट प्रॉफिट बचेगा विच विल बी माय बैलेंसिंग फिगर। तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने के लिए वो खर्चे जो डेबिट किए जाते हैं और उन्हें रेवेन्यू से माइनस किया जाता है उसे हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। ये सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो अगर मुझे क्वेश्चन में कहा गया है कि दिस थिंग इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दैट मीन्स वो P&L के डेबिट में आएगी, ध्यान रखना। और यही मेरा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। रिकॉर्ड अगर करने की मैं बात करूं तो इट इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट। जितने भी चार्जेस हैं वो P&L में मैंने कहा बेटा डेबिट होंगे। ये देखो रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, डेप्रिसिएशन, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, कितनी सारे ऐसे एक्सपेंसेस है जो हम पढ़ते हुए आए हैं जो P&L में डेबिट होते हैं, तो सिमिलरली वो डेबिट होंगे। अगर अब मैं बात करती हूँ रिकॉर्डिंग की P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो यहाँ पे जितने भी मेरे एप्रोप्रिएशंस होते हैं दे आर डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है कि ये मेरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, मैंने यहाँ क्रेडिट साइड पे नेट प्रॉफिट लिख लिया, इस नेट प्रॉफिट में से मैंने IOC दिया, पार्टनर को सैलरी दी, पार्टनर को कमीशन दिया, ये सब मैंने नेट प्रॉफिट में से दिया। तो जब मैंने ये सब पार्टनर्स को नेट प्रॉफिट में से दिया बेटा तो ये सब डेबिट ही तो हुआ ना P&L अकाउंट में। रूल तो वही है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो सिमिलरली इनको हम क्या करते हैं, वी डेबिट देम इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑल द एप्रोप्रिएशंस, ठीक है। और अब एक बात ध्यान रखना कि अगर मैं बात करती हूँ प्रायोरिटी की, प्रायोरिटी मीन्स किसको पहले प्रायोरिटी मिलती है, हु इज़ प्रायोरिटाइज्ड फर्स्ट। सो इट इज़ अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन। देखो जब तक मैं प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को माइनस नहीं करूंगी या चार्जेस को माइनस नहीं करूंगी तो क्या मैं नेट प्रॉफिट निकाल सकती हूँ? नहीं निकाल सकती बेटा, ठीक है। एंड इट इज एप्रोप्रिएटेड आफ्टर अकाउंटिंग ऑल द चार्जेस। इट इज अलाउड, लिख लो, आफ्टर ऑल चार्जेस, सारे चार्जेस को माइनस करने के बाद ही मैं एप्रोप्रिएशंस दे सकती हूँ। जब तक मैंने सारे खर्चे माइनस करके अपना प्रॉफिट नहीं निकाला तब तक मैं अपने प्रॉफिट में से कैसे दे सकती हूँ? मैं नहीं दे सकती, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स थोड़े से आपको दे के समझा देते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या रहने वाले हैं बेटा, जैसे रेंट हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है बेटा, वो सारी चीज़ें जो प्रॉफिट में से हम पार्टनर को देते हैं, जैसे पार्टनर की सैलरी, पार्टनर्स IOC, पार्टनर्स का ही अगर कोई और पेमेंट है जैसे रेम्यूनरेशन है या कुछ भी है, तो ये सारे के सारे मेरे एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है जो मुझे प्रॉफिट में से पार्टनर को देने। तो मैं एक बार फटाफट से दोनों टॉपिक्स रिकैप करा देती हूँ। और रिकैप्चुलेशन में क्या बताने वाली हूँ कि मैंने आपको आज बताया P&L अकाउंट के बीच में डिफरेंस और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बीच में डिफरेंस, जिसमें मेरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और P&L अकाउंट के बीच में डिफरेंस क्या कहता है कि भाई ये इससे पहले बनेगा, ये उसके बाद बनेगा, नेट प्रॉफिट निकलेगा, नेट प्रॉफिट यहाँ पे पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे, इनकम्स को क्रेडिट करेंगे, वहाँ पे सारे एप्रोप्रिएशंस को हम डेबिट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद दोनों अकाउंट्स के ऊपर नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है जो मैंने आपको बताया। चार्ज और एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है भाई, अगर मुझे क्वेश्चन में कहा है ये चीज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, दैट मीन्स ये चीज़ प्रॉफिट निकालने के लिए मेरी यूज़ की जा रही है, ठीक है। दैट मीन्स ये मेरे खर्चे हैं जिन्हें मुझे P&L में डेबिट करना है। और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है, ये वो चीज़ें हैं जो प्रॉफिट में से पे की जाएंगी। एप्रोप्रिएशंस मतलब पेमेंट्स आउट ऑफ नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के बाद जो पैसा यूज़ किया जा रहा है, प्रॉफिट जो मेरा आ गया है, जिस पैसे से मैं पेमेंट करूँगी अपने सारी की सारी पार्टनर्स की, उनका सैलरी, उनका रेम्यूनरेशन, IOC, ठीक है। सो आज के लिए ये इट्स जस्ट वन शॉट फॉर योर IOC एंड योर
सॉरी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड योर एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट प्लस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाना सिखाऊंगी, प्लस मैं उसमें एक या सिर्फ फॉर्मेट सिखाऊंगी। उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके बेस कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए, इसी तरीके से इन डेप्थ नॉलेज के लिए बिल्कुल कनेक्टेड रहना। थैंक